Today, in our English grammar class, we learn about tenses. Tense is very important in spoken English and in written English also. All of us know English is a very important language. It can be used as an international language because when we go out of our country, even in our own country also, we want to speak. It is very necessary to speak in English when we go to non-Hindi speaking states like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, etc. And in foreign countries also, we have to use English in our daily life. So English speaking is also very important. So we have to learn how to speak English, good English. In order to speak good English, you should know tenses. What is tenses? How many tenses are there? And what are the uses of tenses? I will explain. I will teach you in my classes. I am going to conduct 5 or 6 videos on tenses. Each tense has a separate video, and I request all of you to learn tenses. You watch my video on YouTube. You are welcome to my channel English and Math Learning Hub. I am Joseph PG. I am from Kerala, and I have an experience of 20 years of teaching English language and spoken English. In English language, there are three tenses. They are first one, present tense. In Hindi, we call it Vartaman Kal. Present tense. Second one is past tense. यानी भूतकाल. And third one is future tense. यानी भविष्यकाल. In the series of videos on tenses, if you watch them carefully and learn them, I assure you, you should surely learn good English and will be able to speak with anybody with enough confidence. And now come to the point. Present tense. What is present tense? At present means we are doing what we are doing now. It is expressed in present tense. वर्तमान काल यानी अभी हम लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, इसका बारे में हमें बताना है तो प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का प्रयोग करता है. और बीता हुआ चीज अभी बीत गया, जो चीज भूत में है बीत गया, उसे बताने के लिए हम लोग भूतकाल का प्रयोग करता है, पास्ट टेंस. एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल. आगे आने वाला समय में हम लोग जो करते हैं, करेंगे, करने के लिए सोच रहा है, उसका विषय में बताने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल का प्रयोग करता है. अभी हमें समझना है कि अंग्रेजी भाषा में केवल ही 3 टेंस नहीं है, प्रत्येक में 4 और डिविजन है. उसका बारे में आप लोग के सामने में बोर्ड में लिखने जा रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से देखिए और इसको सीखिए. पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है पहला. इसका दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कंटिन्यूअस का स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए। बहुत सारे लोग कंटिन्यूअस का स्पेलिंग अक्सर गलत लिखता है। हमने देखा है कि कंटिन्यूअस का स्पेलिंग ऑफन स्टूडेंट्स इवन टीचर्स आर also making mistake because so spelling is CONTINUOUS. So you should be careful, you learn it perfectly because you should not make mistake in the future while we write or read this continuous. Second one, third one is present perfect tense. Present perfect tense. And fourth one is present perfect continuous tense. You see here, there are four kinds of present tense. We can classify present tense into four. They are present indefinite tense, yeah, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Now let us go to past tense. In past tense also there are four divisions. We can classify into four divisions. They are past indefinite, yeah, इसको हम लोग we can write as simple past tense. Simple past tense. Again, second number is past continuous tense. Past continuous tense. Third is past perfect tense. And fourth one is past perfect continuous tense. In this way, in past tense also there are four subdivisions and all the four are before you. If you learn only one about the divisions of subdivisions of present tense, you can easily learn all other tense. Just change present into past, same to same. Just replace present with past. You will get all the four tenses: past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Now the third one is future tense. In future tense also there are four divisions as we have learned here in present and past. They are future indefinite, yeah, simple future tense, and second one future continuous, third one is future perfect tense, fourth one is future perfect continuous tense. My dear students, I have written all the tenses and their subdivisions, and as a whole we can say there are 12 types of tense. You have to learn the rules of all these tenses in order to speak and write good English. Our next class also depends on this because without learning tenses you cannot go forward. Without learning tenses you cannot learn passive voice, you cannot learn direct and indirect speech, narrations, and you cannot write small essays and stories. So it is very necessary for all of us to learn the tenses first.
because it is the most important portion in English grammar while we learn English grammar. If you want to speak, if you want to write good English, the tenses is very important. I think it is a long topic for you. Surely it is long because you have to learn 12 kinds of them. So it will take at least 12 videos to make you understand perfectly about the tenses. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टेंस यानी काल के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे अंग्रेजी क्लासेस में, इंग्लिश का आगे का ग्रामर व्याकरण का पीरियड्स में, वीडियोस में आपको जो आने वाला चीज़ है, पासिव वॉइस है, नरेशन है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, इस तरह तमाम तरह के जो चीज़ें हैं इसको आपको कंप्लीट करना है, सही सलामत अच्छे से करना है, तो आपको टेंसेस सीखना पड़ेगा. ये एक वीडियो से पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इस प्रत्येक बारे में हम लोग को कम से कम आधा घंटा का वीडियो चाहिए, आधा घंटा का क्लास कम से कम चाहिए. इसका नियम सिखाना है, हिंदी भाषा में ये कैसे आप पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पहचान आपको समझाना है. दूसरा, इसमें वाक्य बनाने के लिए आपको सिखाना है. इस तरह करके एटलीस्ट इट विल टेक हाफ एन आवर क्लास फॉर ईच टेंस. So I think it may be 6 or 7 hours it may take to complete the classes. So first of all, you learn the names of tenses. After that we go forward and learn present indefinite tense. Here in this video I am going to teach you about present indefinite tense also. I believe that all of you understood this, and once again I am going to read it. आपको मैं इस वीडियो का माध्यम से पूरा टेंस, 12 टेंस का नाम लिख लिया है. ये आपको याद करना जरूरी है. इसका विषय में मैं प्रत्येक वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे. सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का बारे में सीखेंगे. उसका वाक्य कैसे बनेगा इसका बारे में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ. Here you see I am going to teach you, explain about present indefinite tense. In Hindi language, those sentences ending with ta hai, ti hai, ta hum, te hum, te hai, all these sentences are in present indefinite tense. जो वाक्य हिंदी भाषा में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है से समाप्त होते हैं, उस तरह का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. इसका पहचान है तो हम लिखेंगे ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो. इस तरह का वाक्य जो हिंदी भाषा में समाप्त होता है, इस तरह का शब्द के साथ, इस तरह का शब्द के साथ समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में. कुछ उदाहरण के जरिए आपको मैं समझाने जा रहा हूं. वह खाना खाता है, इसके अंत में ता है. सीता बाजार जाती है, यहां आप देखिए ती है आगे. मैं विद्यालय जाता हूं, देखिए यहां क्या आ गए ता हूं. अगर
एक फीमेल है या स्त्री है, यहाँ पुरुष बोलेंगे ताहुम, स्त्री बोलेगी तो मैं अंग्रेजी पढ़ती हूं। अभी ते है, वे क्रिकेट खेलते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं। आप विद्यालय जाते हो। यहां आप देखिए, यू ऑब्जर्व these sentences carefully. You see these sentences and find out why these sentences are in present tense, because we can easily identify these sentences because at the end of the sentence ता है, ती है, ताहुम, तीहुम, ते है, ते हो, इस तरह का शब्द आते हैं। तो उस तरह का शब्द आने पर वो वाक्य को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है। यहां हम इसका इंग्लिश लिखने जा रहा हूं, ही ईट्स फूड। सीता goes to market. I go to school. I read English. They play cricket. We read books. You go to school. See these sentences, and here we can find one more important thing in present indefinite tense. You see here I have added s with eat. eat के साथ हम लोग s लगाया। क्यों लगाया? यहां देखिए, गो के साथ, गो मैंने जाना होता है, गो का साथ es लगा दिया। क्यों लगाया? यहां आई जब आया है तो गो के साथ es नहीं लगा। आप ध्यान दीजिए, यहां सीधा थी तो घोष लगाया, गो के साथ गो प्लस es लगा। यहां ईट के साथ ईट का साथ प्लस एस लगा। आई रीड, देखिए रीड के साथ कोई एस नहीं लगा है। दे प्ले, यहां प्ले के साथ एस नहीं लगा है। वी रीड, हम पढ़ते हैं, वहां भी एस नहीं लगा है। यू गो, वहां भी एस। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वजन है। ही एक व्यक्ति के लिए, एक आदमी के लिए बताया जाता है, ही इज ए बॉय, ही इज ए मैन, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए फार्मर, ही इज ए टीचर, ही इज ए पायलट, ही इज ए पुलिसमैन, ही इज ए थीफ। ही एक वचन है, एक आदमी के लिए, एक पुरुष के लिए, एक व्यक्ति के लिए हम लोग ही कह सकता है। अगले वाला एक आदमी है तो हम लोग ही उसको बोल सकता है। रमेश को हम लोग ही बोल सकता है, राजू को हम लोग ही बोल सकता है। तो आगे वाला एक पुरुष है, एक पुरुष व्यक्ति है, तो उसको हम लोग ही बोल सकता है। तो ही एकवचन है। उसी तरह सीता, सीता एक कितने हैं? एक लड़की है सीता, मेरे सामने खड़ी है सीता, तो एकवचन है, एक है। तो एकवचन सब्जेक्ट होने पर, सब्जेक्ट यानी कर्ता, यहां करने वाला, जाने वाला कौन है? सीता है। खाने वाला कौन है? वह है। अगर कर्ता, करने वाला एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का साथ, वर्ब के साथ यस या ईएस लगाएगा। अब यस कहां लगेगा?
ईएस कहाँ लगेगा वो भी सिंपली बता सकता है। जहाँ वोवल्स आएगा ईएस लगता है, जहाँ कॉन्सोनेंट वगैरह आता है तो उसका साथ एस लगता है। ये हम फिर वोवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ाने के समय आपको इंग्लिश ग्रामर क्लास मेरा वीडियो का जो सीरीज है उसी में आपको इंग्लिश ग्रामर में वोवल्स एंड आर्टिकल्स कर एक लेसन आएगा। उसी में आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि क्रिया का साथ यस कहाँ लगेगा, यस कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है। ये चीज हम कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स पढ़ाने के समय आपको बताएंगे। तब तक आप इतना समझ लीजिए, अगर कर्ता एकवचन है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, then you have to add s or es with the verb। आप वाक्य को ध्यान से देखिए, यहाँ वह एक आदमी है, यहाँ सीता एक लड़की है या एक औरत है, तो एकवचन आने पर क्रिया के साथ आपको निश्चित रूप से यस या यस लगाना है। जैसे उदाहरण आपको दिया गया। अब हम आई में जाएंगे। आई भी एक वचन है। आई मीन्स मैं एक वचन है, चार लोग तो है नहीं। कोई भी अगर बोलेंगे आई एम ए बॉय, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए पेशेंट, आई एम ए फार्मर, आई एम ए सिंगर, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एक वचन है, एक आदमी। लेकिन क्यों उसके साथ यस नहीं लगा? यहाँ सीधा का सीधा गोस है, तो इधर आई गो क्यों है? क्योंकि हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज, आई को एक पर्टिकुलर प्लेस दिया गया है। हिंदी में भी हम लोग अगर वह खाना खाता है तो मैं खाना खाता हूं क्यों बोलते हैं? मैं खाना खाता हूं, यहाँ खाता है। उसी तरह सीता बाजार जाती है, तो अगर एक लड़की बोलेंगे मैं बाजार जाती हूं आएगा, तो यहाँ हुम लगाकर उसको एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी वैसा ही है। तो आई गो टू स्कूल आएगा, आई रीड ए बुक, आई गो टू स्कूल, आई प्ले फुटबॉल, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई गो टू माई स्कूल, मैं मेरा विद्यालय जाता हूँ, आई ड्राइव ए कार, मैं कार चलाता हूँ, आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई रीड ए स्टोरी बुक, मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, कहानी का किताब पढ़ता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ, आई कट एन एप्पल, मैं एक सेब काटता हूँ, आई ईट माई फूड, मैं मेरा खाना खाता हूँ। देखिए यहाँ सब में आपको वर्ब का जो पहला रूप है, वर्ब को चार रूप है, आपको बता दे रहा हूँ। पहला रूप है बेस फॉर्म, यानी कॉमनली हम लोग आसान भाषा में V1 लिखते हैं, यानी उसको बेस है, उसका मूल रूप कहा जाएगा। वो है जैसे ईट का ईट होता है, मूल रूप है। रीड का रीड, सिंग का सिंग, गो, प्ले, थिंक, राइट, टीच, लर्न, रीड, जंप, कम, गो, कट, सिट, ये सब वर्ब का मूल रूप है। ये मूल रूप हमें आई का साथ देना है, ईएस या एस नहीं लगाना है। उसी तरह यहाँ देखिए प्ले के साथ एस नहीं लगाया, प्ले के साथ एस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दे में कितने लोग, वहां कुछ लोग खड़े हैं, तो मैं कह सकता हूं दे आर बॉयज, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर गर्ल्स, दे आर फार्मर्स, दे आर गुड पीपल, दे आर टीचर्स। इन दिस वे दे अनेक लोग के लिए बोलता है। एक से अधिक लोग रहेगा, एक से अधिक आदमी हो, एक से अधिक औरत हो, एक से अधिक बच्चे हैं, एक से अधिक विद्यार्थी है, तो हम दे का प्रयोग करता है, उसमें एक से अधिक है। वी हम लोग, इसमें भी अनेक लोग हैं, मैं है और मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं, मेरे साथ अगर 4-5 लोग यहाँ खड़े हैं
तो हम लोग कहेंगे वी आर टीचर्स। हम लोग 4 टीचर्स यहाँ खड़े हैं तो हम बोलेंगे वी आर टीचर्स। मेरे साथ अगर 5 आदमी यहाँ खड़े हो तो हम कह सकते हैं वी आर मैन। हमारे साथ अगर 500 और लोग हैं तो हम कह सकते हैं वी आर टीचर्स। इन दिस वे हम लोग एक से अधिक लोग हैं तो उसको वी बोलते हैं। यहाँ भी बहुवचन यू, अगला है यू। यू एक वचन भी है बहुवचन भी है, लेकिन बहुवचन का ही रूप में यू को प्रयोग करता है। यू आर ए बॉय, एक लड़का है लेकिन यू आर ए बॉय, यू ए से बॉय नहीं प्रयोग होता है। तो यू का साथ आप कभी भी एक बहुवचन के ही तरह प्रयोग करेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। यू आर ए बॉय, यू आर ए फार्मर, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए डॉक्टर। देखिए यहाँ एक है फिर भी हम लोग बहुवचन का तरह प्रयोग करता है। एक डॉक्टर है तो बोलेंगे यू आर ए डॉक्टर, आप एक चिकित्सक हो। यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हो। हमसे छोटा है जिसको आदर नहीं देना है तो उसे हम हिंदी भाषा में तुम बोलेंगे। एक बच्चे को बुलाना है तो हम क्या कहेंगे, तुम इधर आओ। अगर उसको थोड़ा मैनर्स के साथ बोलना है तो हम आपका प्रयोग करते हैं। ये एक मैनर्स या पोलाइटनेस के साथ बोलना है तो आप। हमसे बड़े लोगों के साथ हम आपका प्रयोग करेंगे, हमसे छोटे हैं तो हम तुम का प्रयोग करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट, एक बच्चा है, पढ़ने आया है तो तुम इधर आओ। तुम होमवर्क क्यों नहीं बनाया, तुम खाना खा कर आए हो, तो मैं उसको तुम का प्रयोग करेंगे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में उसके लिए भी हम लोग यू, वाई ओ यू, यू का प्रयोग करेंगे। वो भले बड़े हैं हमसे या छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं। इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में यू आर ए बॉय, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए टीचर, यू आर माई फादर, यू आर माई मदर, यू आर माई ब्रदर्स। इन दिस वे देखिए वहां हम बहुवचन के लिए भी यू का प्रयोग है। यू आर माई ब्रदर्स, आप लोग मेरे भाई है, आप लोग मेरा दोस्त है। यू आर माई फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स बहुवचन है तो फिर भी हम यू का ही प्रयोग किया, वहां तुमने यू का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वचन करता है तो आपको क्रिया का साथ यस या ईएस लगाना है। आपको क्रिया का साथ यस या ईएस लगाना है, ये मत भूलिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम लोग टीचर्स जब क्लास में पढ़ाते हैं तो किसी बच्चे को टेस्ट करना है, देखना है कि उसका जांच करना है क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छा से जानता है कि नहीं जानता है। तो यही सवाल पूछते हैं पहले, बताओ ये सही है कि नहीं। सीता गो टू स्कूल, सही है? तो अगर बच्चे कहते हैं हाँ सही है तो समझ लेंगे इसको जानकारी नहीं है। तो आपको सबसे जरूरी है कि हिंदी भाषा में देखिए ऑल ऑफ अस आर बाइलिंगुअल, हम सब बाइलिंगुअल है यानी दो भाषी हैं हम सभी लोग। किसी न किसी दो भाषा आपको जरूरी है। केवल हिंदी से आपका काम नहीं चलेगा, केवल अंग्रेजी से ही आपका काम नहीं चलेगा। यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। आई नो एटलीस्ट 4 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम एंड कन्नड़। तो at least 2 languages is very necessary for all of us. Especially you should know English. English आपको आना बहुत जरूरी है क्योंकि in our future, in our career, we have to find out good jobs, not only in our country but even in foreign countries, in other states, non-Hindi speaking states, even in Hindi speaking states also. You have to deal with the computer, you have to work as a computer operator, office attendant. In every walk of life, we have to use English. So it is very important. If you learn English well, you will get good image wherever you are working. It's no doubt. उसका कोई दोराय नहीं है। आपका अंग्रेजी अगर सही है, आप अंग्रेजी सही बोलते हैं तो आपको जहां भी है अच्छा आपका लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा
आदमी है। तो ये ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज हिंदी भाषा में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो। अगर आ रहा है शब्द वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, देखिए वह खाना खाता है, सीता बाजार जाती है, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ती है। इस सब में क्या है? ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप वाक्य बनाएंगे। दूसरा है अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। प्राइमरली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में हो या हिंदी लैंग्वेज में कि तीन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, एक है कर्ता, एक है क्रिया, तीसरा है कर्म। तीन इंपॉर्टेंट है, तीन चीज जरूरी है, कर्ता, क्रिया और कर्म। यहाँ कर्ता है सब्जेक्ट, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहेंगे, क्रिया को हम वर्ब कहेंगे और कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज जरूरी। तो पहले समझिए टू आइडेंटिफाई विच इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ ही है, कर्ता ही है, करने वाला है कर्ता। यहाँ कौन खा रहा है? ही है, वह। कौन जा रही है? सीता। कौन जा रहा है? आई। कौन पढ़ रहा है? आई। कौन खेल रहा है? दे। कौन पढ़ता है? वी। कौन विद्यालय जाता है? यू। तो यहां सबसे जरूरी है ये आप सब्जेक्ट को पहचानिए। इसके बाद तुरंत बाद क्रिया आता है, वर्ब। इंग्लिश भाषा में, हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी में पहले सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, वह खाना खाता है। यहां ध्यान दीजिए, इंग्लिश में वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो आप लिखेंगे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, क्या लिखेंगे? ही, खाना का फूड, ईट, खाता है, ईट। क्या ये सही है? ही फूड ईट्स। ट्रांसलेशन हो गया। अक्सर प्राइमरी सेक्शन और जूनियर सेक्शन में बच्चे ही गलती करता है। ट्रांसलेशन दिया जाए, वह खाना खाता है, ही फूड ईट। वह विद्यालय जाता है, राजू विद्यालय जाता है, राजू स्कूल गो। वे क्रिकेट खेलता है, दे क्रिकेट प्ले। क्या ये सही है? नहीं। इंग्लिश भाषा में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होता है। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेशन का समय इस पर बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इस पे समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश भाषा का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। लेकिन हिंदी भाषा में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भिन्न है, अलग है। उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। उसका उदाहरण है वह विद्यालय जाता है, मैं खाना खाता हूं, सीता किताब पढ़ती है। क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। तो किताब ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ती है। पढ़ती है वर्ब है। तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश में यही अंदर है। आप ट्रांसलेशन करने का समय इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है। और इस तरह भी बच्चे और अक्सर इंग्लिश में शुरुआत करने वाला ट्रांसलेशन करता है, सीधा बाजार जाती है। सीधा बाजार मीन्स मार्केट, सीधा मार्केट गो। मैं विद्यालय जाता हूं, आई स्कूल गो। वे क्रिकेट खेलता है, दे क्रिकेट प्ले। हम पुस्तक पढ़ते हैं, वी बुक्स रीड। ट्रांसलेशन हो गया। तो गलत है ना, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, वो गलत है, ऐसे मत कीजिएगा। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदी में अंत में ता है, ती है, ये आएगा। दूसरा है सब्जेक्ट एवजन है तो वर्ब का साथ एस लगेगा या एस लगेगा। सब्जेक्ट बहुवचन में है, आई या यू भी हो तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। This is my present indefinite classes. In the coming classes, I will teach you about present continuous, present perfect,
and in this way I will complete all the tenses within the series of tenses videos.